السلام علیکم، میرا نام عصمت ہاؤس والی ہے اور اس ٹائم میں چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ موجود ہوں اور چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ میرا ایک موضوع ہے دی فیوچر آف ورک ریموٹ جاب کیا ہوتے ہیں؟ جی چیٹ جی پی ٹی وعلیکم السلام عصمت صاحبہ. جی، ریموٹ جاب وہ کام ہوتا ہے جسے آپ دفتر جائے بنا کہیں سے بھی کر سکتی ہیں، جیسے گھر سے یا کسی بھی انٹرنیٹ والی جگہ سے. آج کل کئی فائدہ یہ ہے کہ جگہ کی پابندی نہیں رہتی، سمے اور ٹریول کا خرچ بچتا ہے اور ورک لائف بیلنس بہتر ہو سکتا ہے. اوکے. لیکن اس میں خود پر ڈسپلن ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے. فیوچر میں یہ ٹرینڈ اور بڑھنے کی امید ہے، خاص کر ڈیجیٹل سکلز والے لوگوں کے لیے. تو ریموٹ جاب جو ہیں وہ مستقبل میں کیوں اہم ہے؟ چیٹ جی پی ایک سیکنڈ چیک کرنے دیجیے. جی، حد تک ہاں، یہ فیوچر کا بڑا حصہ ہے، لیکن ہر جاب کے لیے نہیں. اوکے. کئی انسان کی فزیکل موجودگی، ڈیزائن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ڈیجیٹل سکلز، کمیونیکیشن اور نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کی عادت بہت معنی رکھے گی. جن کے پاس یہ سکلز ہوں گی ان کے لیے موقع پہلے سے زیادہ ہوں گے. اوکے. تو ریموٹ جاب کے سب سے بڑے فائدے کیا ہیں؟ بس ایک سیکنڈ. جی، بڑے فائدے ہیں: فلیکسیبلٹی، ٹائم اور ٹریول کی بچت، الگ الگ دیشوں کی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع، اور اگر سمے مینج ہو جائے تو ورک لائف بیلنس بھی ہاں. اچھا بن سکتا. ضروری ہے ان سکلز کے ساتھ ریموٹ جاب بہت ہی بڑھیا کریئر آپشن بن جاتی ہے. اور واقعی کئی لوگوں کے لیے یہ فیوچر کا نارمل طریقہ بنتا جا رہا ہے. اوکے. تو چیٹ جی پی ٹی یہ بتائیں، کیا ریموٹ جاب جو ہے وہ ہر شعبے کے لیے ممکن ہو سکتی ہے؟ ذرا چیک کر لینے دیں. ہاں، ہو سکتی ہے. سیلری، ہاں. اسکلز، ایکسپیرینس اور رول پر ڈپینڈ کرتی ہے، نہ کہ صرف لوکیشن پر. کئی ریموٹ رولز اچھی سیلری دیتے ہیں، خاص کر ٹیک، ڈیزائن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا اسپیشلائزڈ فیلڈز ہاں. میں. ہاں. اگر کوئی لگاتار اسکلز اپڈیٹ کرتا رہے تو ہائی پینگ ریموٹ جاب کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں. اوکے. تو ہمیں جو ہے وہ ریموٹ کام کے لیے کن مہارتوں کی بھی ضرورت چاہیے ہمیں، مطلب کیا چیزیں کی ضرورت ہے جو ریموٹ جاب کے حوالے سے؟ ذرا چیک کر لیتی ہوں. اچھا سوال ہے. ریموٹ ورک کے لیے چاہیے ایک اچھا کمپیوٹر اور اسٹیبل انٹرنیٹ، ٹائم مینجمنٹ، کمیونیکیشن اسکلز، ای میل اور آن لائن ٹولز کی بیسک سمجھ، اوکے. اور جس فیلڈ میں کام کرنا ہے اس کی ٹیکنیکل اسکلز جیسے ڈیزائن، مارکیٹنگ یا کوڈنگ وغیرہ. ان چیزوں کے ساتھ آپ مضبوط شروعات کر سکتی ہیں. ٹائم اور کوڈنگ مطلب؟ تھوڑی وضاحت. ایک منٹ. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے اپنے سمے کو ایسے ویوستھت کرنا کہ کام سمے پر پورا ہو جائے، جیسے ڈیلی ٹاسک لسٹ بنانا، پرائورٹی سیٹ کرنا، میٹنگ سمے پر اٹینڈ کرنا. اور کوڈنگ کا مطلب ہے کمپیوٹر کو کمانڈ دینے کے لیے پروگرامنگ لینگویج سیکھنا. اوکے. لیکن ہر ریموٹ جاب کے لیے کوڈنگ تو ضروری نہیں. اگر آپ کی فیلڈ کانٹینٹ ہم، رائٹنگ، تو ریموٹ جاب میں سب سے بڑا چیلنج کیا کوڈنگ ہوتا ہے؟ ضروری نہیں. ہاں، ایک سیکنڈ دیکھتی ہوں. سب سے بڑا چیلنج سیلف ڈسپلن، کیونکہ کوئی مینیجر سر پر کھڑا نہیں رہتا.
हाँ, दूसरी कमी डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। ओके। घर के माहौल में टेक्निकल इश्यूज जैसे इंटरनेट रूटीन, क्लियर कम्युनिकेशन और शांत वर्क स्पेस से इन चैलेंजेस को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। ओके, तो ये रिमोट जॉब के लिए किन हालात की ज़रूरत होती है? देख लेती हूँ। जी, ज़रूरी चीज़ें अच्छा लैपटॉप, फास्ट इंटरनेट, शांत वर्क स्पेस, हेडफोन और माइक, ईमेल और मीटिंग टूल्स की बेसिक नॉलेज और सबसे अहम सही आदतें और स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन। इनका कॉम्बिनेशन आपको रिमोट जॉब में सफल बना सकता है। तो क्या और आप किस चीज़ के ऊपर काम करना चाहेंगी? तो क्या रिमोट जॉब से अच्छी आमदनी मुमकिन है? मिसाल के तौर पे अगर हम क्या उसमें आमदनी अच्छी मुम हुँ, समझ गई। अगर आपने स्किल जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग या वर्चुअल असिस्टेंस अच्छी हाँ, तरह हाँ, सीख ली है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स या कंपनी के साथ काम करती है, हाँ, तो अच्छी आमदनी मुमकिन है। शुरू में इनकम कम हो सकती है, पर एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। ये ओके। सिर्फ घर से काम करने का तरीका नहीं, बल्कि एक करियर भी बन सकता है, अगर आप अपनी स्किल्स को लगातार निखारती रहें। ओके, तो फिर हमें ये बताएँ कि हम अगर रिमोट जॉब करना चाहें तो कै पहले चेक कर लेती हूँ, फिर आसान स्टेप्स वाइज फिर उस फील्ड की स्किल सीखें, प्रैक्टिस करें, छोटा पोर्टफोलियो बनाएं, एक प्रोफेशनल सीवी और लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, फिर रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करें, कंपनी वेबसाइट्स, भरोसेमंद जॉब प्लेटफॉर्म। ओके, तो मुझे ये बताएँ छोटे तो प्रोजेक्ट करना एक्सपीरियंस के लिए ठीक है। ओके, मुझे ये बताएँ कि रिमोट जॉब में एआई का क्या किरदार है? चेक कर लेती हूँ। जी, रिमोट जॉब्स में एआई का रोल बहुत अहम है। ईमेल, डॉक्यूमेंट, समरी, ट्रांसलेशन, कंटेंट आइडियाज़ जैसे काम तेज़ और आसान बना देता है। हुँ, हुँ, कई कंपनियां डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट और मार्केटिंग में एआई टूल्स इंटीग्रेट कर रही हैं। हुँ, जो लोग एआई को समझकर उसे अपने काम में लगाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। यानी फ्यूचर में सिर्फ स्किल्स ही नहीं, बल्कि एआई टूल्स का सही इस्तेमाल सीखना भी ज़रूरी ओके, स्किल बनता जा रहा है। और हम रिमोट जॉब में टीम वर्क कैसे शुरू कर सकते हैं? चैट जीपीटी आपको आती है? एक सेकेंड। हाँ, बिल्कुल, रिमोट पर हाँ, जी, नियमित कम्युनिकेशन, क्लियर ज़िम्मेदारियाँ, टाइम पर रिस्पॉन्स, एक दूसरे की प्रोग्रेस शेयर करना और भरोसा बनाना, यही बेसिक्स हैं जो रिमोट टीम वर्क को असरदार बनाते हैं। ओके, कुछ और पूछना है? जी, जी। आप मुझे ये बताएँ कि मुस्तक़बिल में जो है रिमोट जॉब जो है वो क्या फ़ायदा दे सकती है? और ये ज़्यादा मकबूल कौन-सी हैं मुस्तक़बिल में रिमोट जॉब्स? चेक कर लेती हूँ। जी, फ्यूचर में रिमोट जॉब्स और भी मौके देंगी। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल टाइम बचत, बेहतर लचीलापन और एआई टूल्स के इस्तेमाल से काम ज़्यादा एफिशिएंट होगा। जो लोग अपनी स्किल्स अपडेट करते रहेंगे, उनके लिए फ्यूचर और भी ब्राइट है। हुँ। और आपको क्या जानना है? मुझे ये जानना है कि क्या रिमोट जॉब जो है मुस्तक़बिल की मुस्तकिल हकीकत बन जाएगी या नहीं? मतलब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट? यस। ये तो डिस्कस किया था, रिमोट जॉब्स का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ओके। तो रिमोट जॉब शुरू करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए?
शेयर कर लेती हूँ। जी, बाकी सबसे और पहला दूसरा कदम है ये है अपनी कि फ़ील्ड चुनना, राइटिंग, अ, डिज़ाइन, मार्केटिंग। दूसरा मेरा सवाल ये भी है साथ में, क्या पाकिस्तान में रिमोट जॉब्स के हाँ, हाँ। मौके मौजूद हैं? शेयर करती हूँ। जी, बिल्कुल, और भी बहुत मौके हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग, कस्टमर सपोर्ट, डेटा एंट्री, वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, खासकर वो लोग जो लगातार स्किल्स सीखते रहें, पोर्टफोलियो बनाएं और रेगुलर अप्लाई करें। फ्यूचर में डिमांड और बढ़ेगी। ओके। और रिमोट जॉब जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में कितनी ज़रूरी है? मतलब देख लेती हूँ। हाँ, इंग्लिश फ़ायदेमंद है, लेकिन हर जॉब के लिए हाई लेवल इंग्लिश ज़रूरी नहीं। बेसिक इंग्लिश सीखना फ़ायदेमंद है, खासकर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। हुँ, लेकिन अगर आपकी कंपनी उर्दू या लोकल लैंग्वेज में काम करती है, तो इंग्लिश उतनी ज़रूरी नहीं। फिर भी बेसिक सीख लेना हमेशा एक्स्ट्रा बेनिफिट है। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करें, स्किल्स और मौके दोनों बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच चैटजीपीटी। आपसे गुफ्तगू करके आपका भी शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छी नॉलेज कभी मिली भी वापस पधारिए। और हमारा टॉपिक भी इस लिहाज से बहुत अच्छा था और आपने मुझे इसके